آج اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آج کی یہ باتیں میری آپ کے پاس امانت ہیں۔ کس زمرے میں امانت ہیں؟ آج جتنی بھی باتیں آپ حضرات سنیں اور میری زبان سے اللہ کی توفیق سے نکلیں، یہ آپ نے اپنی اولاد کو بتلانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتلانا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ صحابہ پر تنقید کے نشتر پھینکتے ہیں، انہوں نے اپنی اولادوں کی ذہن سازی کر رکھی ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہن سازی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین تھے کون۔ آج ہمارے بچے کو نہیں پتا کہ حضرت حسین وادی کربلا میں گئے کیوں تھے۔ آج ہمارے بچے کو نہیں پتا، بچہ تو دور کی بات ہے، آج کے نوجوان کو بھی نہیں پتا کہ حضرت حسین کا حضرت ابوبکر سے رشتہ کیا تھا، حضرت حسین کا حضرت عمر فاروق سے رشتہ کیا تھا، حضرت حسین کا حضرت عثمان غنی سے رشتہ کیا تھا۔ ہم اس میں جہالت کا اظہار نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم اپنے بچے کو ABC سکھانے کے لیے، دنیاوی علوم سکھانے کے لیے صبح سویرے اسے سکول چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اہل بیت کا ذکر یاد کروانے کے لیے اسے کسی عالم کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں؟ اسے کسی مدرسے میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اسے کسی اللہ والے کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں؟ اور ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو معاذ اللہ تماشا بنا کر پیش کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آج تماشا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ تماشا لگائے گا اس کے جہنم کی جو آگ ہے اتنے ہی بھرے گی۔ آج سارا پیسے کا چکر ہے، آج سارا دولت کا چکر ہے، آج دولت کی وجہ سے لوگ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ حضرت حسین نے پانی مانگا، وہ منتیں کرتے رہے، وہ لاشیں اٹھا کے پھرتے رہے۔ او عقل کی اندھو، اگر حضرت حسین نے وادی کربلا میں منتیں ہی کرنی تھی تو پھر انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ کر لی؟ تم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آہو بکا تھی، ماتم تھا۔ اگر آہو بکائی وادی کربلا کے اندر کرنی تھی تو حضرت حسین اپنے خانوادے کو لے کر وادی کربلا میں گئے کیوں تھے؟ پھر اس بہن پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو کہ اپنی چادر کو پھینک کر خیمے سے باہر آ گئی تھی، جو اس فاطمہ کی بیٹی تھی کہ جس نے اپنے جنازے کے بارے میں بھی کہا تھا کہ میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، جو اس حیا والی کی بیٹی تھی کہ جس سے حیا بھی شرماتی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اور ہمارے نوجوان ہیں کہ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ واہ واہ، یہ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ کل قیامت کے دن تمہارے گلے کے توق بن جائیں گے۔ وادی کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وادی کربلا میں پہنچے کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دور خلافت مکمل کر چکے،
अल्लाह की तरफ से बुलावे का परवाना आ गया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल फरमा चुके। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ही मसनद खिलाफत यजीद के सपुर्द कर दिया। यजीद मसनद खिलाफत पे बैठा, उसने हर तरफ पैगामात भेजे, यहां तक के पैगामात का परवाना मदीना में भी पहुंचा कि यजीद के हाथ पर बैत कर ली जाए। यह पैगाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिला। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, मुझे मोहलत दी जाए। क्यों इनकार किया? इसलिए इनकार किया कि यजीद जो था वो इस्लामी इक़दार की हिफाजत करने वाला न था। यजीद ने इस्लामी हुदूद को पामाल कर दिया था और हुसैन नबी के नवासे थे और दीन को बचाना था। आपने मदीना मुनव्वरा को छोड़ा, मक्का मुकरमा तशरीफ लाए। कबायर सहाबा आपके पास आए, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी हैं। कहा कि ए हजरत, आप इराक की तरफ तशरीफ न ले जाएं। हजरत हुसैन ने कहा, ए अब्दुल्ला, मैं इराक की तरफ इसलिए जा रहा हूं कि इराक वालों ने मुझे खत लिखे हैं, कूफा वालों ने मुझे खत लिखे हैं। कमोबेश सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में खत आए हैं, खतूत आए हैं। वो मेरी हिफाजत करेंगे, वो मेरी हिफाजत करेंगे। उन्होंने मुझे बुलाया है। इन हजरात ने कहा कि हजरत, उन्होंने आपके बाबा जान की हिफाजत नहीं की, उन्होंने आपके बाबा जान के साथ बेवफाई की है, वह आपके साथ भी बेवफाई करेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ कूफा के अंदर खबर लेकर आओ। मुस्लिम बिन अकील कूफा के अंदर पहुंचे, वही लोग कि जिन्होंने खतूत लिखे थे। मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली, कहा कि हम हजरत हुसैन के मुंतजिर हैं। उधर हजरत हुसैन के भेजे हुए किसने? सिपाही सलार ने, सफीर ने खत लिखा कि ए हजरत हुसैन, आप तशरीफ ले आए, हालात साजगार हैं, कूफा वाले आपके मुंतजिर हैं। खत लिख दिया, कूफा की गवर्नरी बदली, पहले गवर्नर को माजूल कर दिया गया, इब्ने ज़ियाद गवर्नर बनकर आया और इब्ने ज़ियाद को पता चला कि मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन को खत लिख दिया है। उसने तलवार के जोर पर कूफा वालों को मुनकरा दिया। वही लोग कि जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील को खत लिखा था, खत हजरत हुसैन के पास मक्का में पहुंच गया। उन्होंने खत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दिखाया, उन्होंने खत अब्दुल्ला बिन उमर को दिखाया कि देखो खत भी आ चुका है, हालात साजगार हैं। उन्होंने इजाजत दे दी, ए हजरत आप तशरीफ ले जाएं। आप मक्का मुकरमा से निकले, एक मकाम तक पहुंचे कि उस मकाम पर खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। यहां से आपने वापस पलटने का इरादा न किया, बल्कि आप आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि आप करबला की वादी में पहुंचे। करबला की वादी में पहुंचे, इब्ने ज़ियाद ने एक लश्कर भेजा, 1000 का लश्कर देकर कहा जाओ उनसे मुज़ाकरात करो। करबला की वादी में मुज़ाकरात हुए। हजरत हुसैन ने 3 शराइत रखी। पहली शर्त ये कि मुझे वापस जाने दो, दूसरी शर्त ये कि मुझे बराए रास्त यजीद से मुलाकात करने दो, और तीसरी शर्त ये कि मुझे इस्लामी सरहदों की तरफ जाने दो। यहां से एक नुक्ता जाहिर हुआ कि यह जो लड़ाई थी, यह कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई न थी, बल्कि हक और बातिल का मार्का था। हक और बातिल का मार्का था। अगर कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई होती तो हजरत हुसैन वापस जाने की इजाजत मांगते? कभी ना। अमीर लश्कर ने, वो लश्कर जो इब्ने ज़ियाद ने भेजा था, उसके अमीर ने यह शराइत इब्ने ज़ियाद को भेजी। इब्ने ज़ियाद के दरबार में यह शराइत पढ़ी गई। वहां एक मलऊन शख्स कि जिसका नाम शिमर था, वो बैठा। उसने जब देखा कि सिपाही सलार उसकी तहरीर के अंदर नरम गोशा है, नरम गोशा है, उसने कहा है अमीर मुझे लश्कर देकर भेजें। यजीद की बैत तो बाद की बात है, मैं पहले हुसैन को कहूंगा कि वो इब्ने ज़ियाद की बैत करे।
اب शिमर 2000 का लश्कर लेकर आया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर का घेराव किया, कहा कि बैत करो। हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, बैत नहीं हो सकती, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाने निकला हूं, मैं दीन बचाऊंगा। यहां तक के 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, खुराक बंद कर दी गई, खुराक बंद कर दी गई। यहां तक कि फिर कुर्बानियों का लाजवाल सिलसिला शुरू हुआ। आज के मौलवी, आज के मफाद परस्त मौलवी सिर्फ अपने पेट की आग भरने के लिए, सिर्फ नजरानों के लिए कहते हैं कि हजरत हुसैन लाशें लिए फिरते थे, कहते थे ओ जालिमों पानी दे दो, ओ जालिमों पानी दे दो। नाना, ऐसे जुल्म वाले अल्फाज न बोलो, बल्कि हजरत हुसैन जो कुर्बानी भी पेश करते थे, उन्होंने अली अकबर के लाशे को भी उठाया, उन्होंने अली असगर के लाशे को भी उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, तेरे रास्ते में मेरी ये कुर्बानी है, तू कबूल कर ले, तू कबूल कर ले। अल्लाह, अगर तू इस हाल में मुझसे राजी है तो अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, मैं तुझसे राजी हूं, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थी, वो शख्सियत ऐसी थी, अगर दरियाए फुरात की तरफ इशारा करती, दरियाए फुरात उनकी तरफ बह पड़ता। अगर वो आसमान की तरफ इशारा करती, आसमान से मनो सलवा उतर सकता था। लेकिन उन्होंने एक सबक देना था कि दीन के अंदर मुश्किलात आएंगी, दीन के अंदर मसाइब आएंगे, दीन के अंदर तकालीफ आएंगी, लेकिन ऐ मेरे मानने वालों, उन तकालीफ को बर्दाश्त करते चले जाना, फिर तुम्हारा नाम होगा, फिर तुम्हारा नाम होगा। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं।